In this video, we'll look at three more identities of trigonometry, which is the last part of trigonometry if we consider class 10 students. And these identities are sin square theta plus cos square theta is 1, tan square theta plus 1 is sec square theta, and cot square theta plus 1 is equals to cosec square theta. You need to remember these identities. आप इस चीज को समझो कि अगर कोई सा भी एंगल है, सपोज साइन स्क्वायर 37 डिग्री है और cos स्क्वायर 37 डिग्री है, यहाँ पे एंगल नीड्स टू बी सेम, और अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1. लेट्स टेस्ट दिस थिंग विथ एनी एंगल जिसकी वैल्यू हम जानते हैं. सपोज वी टेक 30 डिग्री, क्योंकि हमें 30 डिग्री की वैल्यू पता है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री. लेट्स चेक इफ इट कम्स आउट टू बी 1 और नॉट. sin 30 we know that it's 1 by 2 इसका स्क्वायर, and cos 30 we know that its value is root 3 by 2 इसका स्क्वायर. So it will be 1 upon 4 plus 3 upon 4. So it will be 4 upon 4 and 1. So these are three identities which you need to remember. Sin square theta plus cos square theta is 1. Tan square theta plus 1 is equals to sec square theta, and cot square theta plus 1 is cosec square theta. So this marks the end of all the identities which you have done so far, and we have done it in the previous videos. If you want to watch them, do watch them. And here we are just revising whatever we have learned so far in trigonometry. पूरे फॉर्मूले का एक बार रिवीजन कर लेते हैं. सबसे पहले हमने देखा था कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये 6 रेशियोज होते हैं. sin is p by h, cos is p by h, and tan is p by b. Okay, then cosec, which is reciprocal of sin theta, is h upon p. Sec is the reciprocal of cos, and it is h upon b. Cot is reciprocal of tan, and it is b upon p. Here in this video we are also going to study something more about trigonometry, so please watch it till the end. यहाँ पे हम sin को 1 upon cosec लिख सकते हैं, और cosec को 1 upon sin. जैसे अगर आपका यहाँ पे tan upon sin लिखा हुआ है और आपको sin को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, तो you can do it tan into cosec. आप हमेशा याद रखना, अगर आप इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पोजीशन चेंज करोगे तो you have to write its reciprocal. Then you have to remember this formula. Tan theta is sin theta upon cos theta, and because cot is opposite or the reciprocal of tan, this will be cos theta upon sin theta. The next identities which we did was sin 90 minus theta is cos theta, and vice versa. Tan 90 minus theta is cot theta, and cot 90 minus theta is tan theta. Similarly, there is a combination of sec and cosec in this type of identity. Now in this video we have done these identities. Sin square theta plus cos square theta is 1. Tan square theta plus 1 is sec square theta, and cot square theta plus 1 is cosec square theta. So these were all the identities that will be used in chapter 8. So you need to learn them. Again, we have done this table. You have to learn this table. In previous video we have discussed how to make this table. Even if we have not learned it, we can easily make this table. Now we will also discuss how to change all the trigonometric ratios in the form of any other trigonometric ratio. Now what does that mean? जैसे अगर तुम्हें दिया जाए कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा में कन्वर्ट करो, तो हम कैसे टैन थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या कॉस थीटा को हम साइन थीटा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, एक और बात है, तुम लोगों को क्वेश्चंस में दिया जाता है कि कोई भी 3 रेशियो दिए जाएंगे. तुम्हें सपोज दिया जाएगा सेक थीटा, टैन थीटा एंड लेट्स से कॉसेक थीटा. इसको साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करो. अब इन तीनों को चेंज करने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करूंगी तो मुझे कम टाइम लगेगा. अब आप सोच रहे होंगे कि हम ज्यादा मेहनत क्यों करें, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्यों फाइंड आउट करें जब हमें 3 दिया हुआ है. तो बिलीव मी, इट विल बी इजियर एंड क्विकर वे टू कन्वर्ट ऑल द रेशियोज. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप 6 के 6 रेशियोज को कन्वर्ट करते हो तो आप एक पैटर्न फॉलो करते हो, आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, और जब आप 3 को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो आपका माइंड वो पैटर्न नहीं बना पाता. तो आप सारे रेशियोज को कन्वर्ट कर लो और उसके बाद उसमें से 3 जो पूछे गए हैं उसका आंसर लिख लो.
बिलीव मी, बहुत टाइम से स्टूडेंट्स को ये करवा रही हूँ और स्टूडेंट्स हैव फाउंड दैट दिस स्ट्रैटेजी इज यूजफुल. So let's see how to convert all the trigonometric ratio in a form of any particular ratio. So let's take an example of sin theta. हम sin theta लेते हैं कि sin theta में अगर मुझे सारे ratios change करने होंगे तो हम कैसे करेंगे. First write down all the ratios. आप सारे ratios एक बार लिख लो. sin theta, cos theta, tan theta. थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दो ताकि आप यहीं पे सॉल्व कर सको. देन इसका रेसिप्रोकल हुआ cosec थीटा, cos का रेसिप्रोकल हुआ sec थीटा एंड tan का रेसिप्रोकल हुआ cot थीटा. आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे आपको बहुत इजीली ये सम बनेगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट. अब आप दो दो करके चेंज करोगे. हमको साइन थीटा में चेंज करना है, तो साइन थीटा तो ऑलरेडी साइन थीटा के फॉर्म में है ही, तो नो नीड टू चेंज दिस. एक हमारा हो गया. देन अगेन यू विल फाइंड वन रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिंग. तो cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल था तो हमने cosec थीटा को इजीली चेंज कर दिया. अब दो तो हमारे यूं ही हो गए. फिर हमें नेक्स्ट टू को पकड़ने के लिए हमें स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज के बारे में सोचना है. तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी साइन के साथ कौन सी थी, हमें जिस रेशो में चेंज करना है उससे रिलेटेड स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के बारे में सोचना है. तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. ये हमारे पास साइन के साथ कॉस थीटा है तो हम सेकेंड नंबर पे इसे पकड़ेंगे. तो अब मैं कॉस थीटा को चेंज करूंगी. तो यहां से क्या आ जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा. और फिर जब आप कॉस थीटा को लिखोगे तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा एंड इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो अब देखो कॉस थीटा कन्वर्ट हो गया साइन थीटा के फॉर्म में. ठीक है, तो एक और रेशियो आपका कंप्लीट हो गया है. अब cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा. तो sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा. अब cos को आपने चूंकि कन्वर्ट कर लिया है तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे. cos थीटा की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये जो हुआ sec थीटा भी कन्वर्ट हो गया साइन थीटा में. अब हमारे 4 हो गए. अब बचे हमारे 2. अब जब आप लास्ट के 2 कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको ये वाली आइडेंटिटी देखनी है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, मैं अभी एक बार और इसको रिवाइज करवाऊंगी. तो अब बारी है tan थीटा को चेंज करने की. tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब आप देखो कि मुझे tan को साइन के फॉर्म में चेंज करना है, तो साइन को तो मैंने ऐसे ही लिख लिया और cos को मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि ऑलरेडी कन्वर्टेड है. ये चीज आ गई. tan थीटा मेरा ये कन्वर्ट हो गया साइन थीटा के फॉर्म में. tan थीटा की जो वैल्यू है वो सारी साइन थीटा के फॉर्म में चेंज हो गई. सिमिलरली जो cot थीटा है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो जस्ट आप इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर लो तो आपका cot थीटा आ जाएगा. So this is how you convert all the ratios in the form of sin theta. So what we have to do is हमें सबसे पहले पूरे 6 के 6 रेशियोज को लिख लेना है और फिर एक तो ऑलरेडी ही उस फॉर्म में रहता है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल होता है. फिर नेक्स्ट जो आप पकड़ोगे वो आप स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में से देखोगे कि उसके साथ किसका कॉम्बिनेशन है, तो अब उसकी बारी आएगी. वो जब कन्वर्ट हो जाएगा फिर आप उसका रेसिप्रोकल में चेंज कर दोगे. देन जो लास्ट है वो इस आइडेंटिटी से होगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. इससे आपका हो जाएगा काम. तो आप दो दो के कॉम्बिनेशन में ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर सकते हो. नाउ लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. लेट्स चेंज एवरीथिंग इनटू cot थीटा. चलो अब हम cot थीटा में सबको चेंज करते हैं. लेट्स राइट डाउन ऑल द रेशियोज. Sin theta, then we'll write the reciprocals. Now cot theta, this is already done, this is cot theta and this is the reciprocal, so these two are changed. ये हो गया. एक तो दो तो यूं ही चेंज हो गए. फिर हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी देखेंगे. तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में आपको ध्यान होगा कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो ये आइडेंटिटी है आपके पास cot स्क्वायर थीटा की.
तो आप कॉसेक को कैसे चेंज करोगे? कॉसेक हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने कॉसेक को पकड़ा नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में कॉट और कॉसेक का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपका आ गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ये आ गया है तो फिर साइन थीटा इसीलिए आ जाएगा क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इट विल कम आउट टू बी 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको बताया है कि लास्ट पेयर को करने के लिए हमें tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस या फिर कॉट इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन की आइडेंटिटी चाहिए। अब आप देखो कि ये चूंकि कॉट थीटा है तो हम ये वाली आइडेंटिटी लेते हैं और मेरा बच गया है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं? कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ कॉस थीटा है तो ये क्या हो गया? कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ साइन थीटा इज दिस थिंग, साइन थीटा हमारा ऑलरेडी आ चुका है। सो इट विल बिकम लाइक दिस। सो व्हाट विल बी द आंसर? The answer would be cot theta upon under root of 1 plus cot square theta. And sec theta is simply the reciprocal of this one. So it will become 1 plus cot square theta upon cot theta. So this is how you change the identities, all the trigonometric identities in a particular form, in a particular trigonometric ratio. So this was all about trigonometry. I hope you all do well in this chapter. Thank you. 10 on 10 strives to make educational videos in a way that's easy for the student to understand the concept fully, yet in an easy way. Please subscribe the channel, share and like the videos, and if you find any problem in any of the topics, do write in the comment section. I'll be happy to help.